Hello dear students, I hope you all are doing well and I hope you all are enjoying history lessons with me. So today we are going to begin the first chapter of the history, which is the French Revolution. Now, as the name suggests, French Revolution, which means we'll be learning about a revolution which happened years ago or centuries ago in the France. Okay, so in this chapter we will be learning about that how France initially used to be a monarchy, how it turned into a republic, and then later on again in the under the leadership of Napoleon, it ended up being a dictator state. Okay, when I say state, children, so state does not mean for example in our country we have different states like Rajasthan, Madhya Pradesh, Gujarat, etc. State means the government. So in general, when I say state, you can understand I'm talking about the country. Okay, so in this chapter we'll be looking at, first of all we'll be seeing the introduction part, that how France initially was a monarchy, then it became republic, and then finally turned into a dictator state, and how this happened. Then we'll be looking at how the French society used to be during the late 18th century, the struggle to survive, how people struggled to survive over there, how a subsistence crisis happened over there, then a growing middle class envisages an end to privileges. So we'll be learning about all of these things. Then the outbreak of the revolution, we'll be reading outbreak of revolution also. Under this we'll be reading how France became a constitutional monarchy. Initially it used to be a monarchy, then how it became a constitutional monarchy we'll be reading in detail. Then how France abolishes monarchy and becomes a republic. Then, did women have a part in the revolution? Did women participated in the revolution? Yes. Did women participate in the revolution? Yes. So we will be reading that also. Then we'll be learning about the abolition of slavery. There used to be slavery system earlier, we have seen in the civics also. Then the revolution and the everyday life, how the life used to be. And finally, we will be looking at the conclusion part. Okay, so let us quickly begin the chapter with the introduction part, the French Revolution. So what happened, children? Please sit all of you straight and keep your book with you, keep a pencil with you. Take this chapter as if you are listening to a story. Then only you will be able to enjoy it. Okay, otherwise you will be confused. Then it will become a cliche that history is a boring subject. No, history is not a boring subject. So just relax. Sit nicely and take your book with you, keep a pencil and listen to me. Okay, so the French Revolution, the caption says the French Revolution. So what is happening? We are talking about the year 1789. So in this entire chapter, we will be looking at a period of 10 years, okay, which begins from 1789 and it goes on till 1799. So it is a 10 years period. So all the events whichever occurred in these 10 years, we will be having a look at it. So in 1789, in the wake of early morning, the city of Paris was in a state of alarm. Rumors spread that the king would open fire upon the citizens. People started gathering and they started breaking a number of government buildings in search of arms. The commander of Bastille was killed in the armed fight and the prisoners were released. What does it mean? So in the year 1789, in the early morning, you all know there is a city called Paris in France. It's very popular. So what happened in that city? There was a rumor that king would be, killing the citizens of its country. Now people got very angry. They started gathering at one place. All right, and then they started destroying government buildings. They were looking for those soldiers who were coming to kill them. There used to be a fort called Bastille. Okay, now the people were so angry that they killed the commander of the Bastille. Okay, and they released all the prisoners who used to be kept there. Okay, now people hated the Bastille as it stood for the despotic power of the king. लोग जो थे वो इस बेस्टाइल फोर्ट को बहुत ज़्यादा डिसलाइक करते थे, बिल्कुल पसंद नहीं करते थे. क्यों? क्योंकि उनको लगता था कि ये जो है किंग की डेस्पोटिक पावर को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है. किंग्स क्या होते थे उस टाइम पे, बहुत डेस्पोटिक होते थे, मतलब निरंकुश. उनके ऊपर कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था, कोई लेजिस्लेटिव नहीं थी, कोई मोनार्क, कोई लेजिस्लेटिव नहीं थी, कोई एग्जीक्यूटिव, कोई जुडिशरी, कुछ भी नहीं होता था. राइट, तो लोगों को ये लगता था कि राजा जो है बहुत ही ज़्यादा डेस्पोटिक है,
किंग इज़ वेरी वेरी डेस्पोटिक, सो पीपल हेटेड दैट प्लेस। उस प्लेस पे जो प्रिजनर्स होते थे उनको रखा जाता था, तो लोगों ने गुस्से में क्या किया, उसको तोड़ दिया और वहाँ जितने भी प्रिजनर्स थे उनको रिलीज करवा दिया। Then what happened? People protested against the high price of bread. फ्रांस में क्या हो रहा था उस टाइम पे, जो इन्फ्लेशन रेट थी वो दिन पर दिन बढ़ती जा रही थी, मतलब महंगाई दिन पर दिन बढ़ती जा रही थी। सो पीपल प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द हाई प्राइसेस ऑफ ब्रेड। लोगों ने क्या किया, उस महंगाई का विरोध करना शुरू कर दिया। वाई ब्रेड ओनली? बिकॉज सी इन इंडिया वी ईट जनरली रोटी, राइस एंड ऑल दैट, इन फ्रांस दे ईट ब्रेड्स generally. So people were protesting against the high price of bread. A new chain of events began which led to the execution of the king in France. अब इससे क्या हुआ, एक chain of events शुरू हो गया बैक टू बैक। जैसे ये आज एक रेवोल्यूशन हुआ, बेस्टाइल फोर्ट को तोड़ा गया, लोगों ने उस फोर्ट को बिल्कुल कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया। इनफैक्ट उसकी एक एक जो ईंट थी उसको उन्होंने बाजार में बेच दिया, बिल्कुल कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया। सो इफ़ यू गो टू द फ्रांस टुडे यू विल नॉट फाइंड बेस्टाइल फोर्ट का कोई भी आपको नामो निशान वहाँ पर नहीं मिलेगा। अब इससे क्या हुआ, ग्रेजुअली एक न्यू चेन ऑफ इवेंट्स स्टार्ट हुआ। उससे फाइनली क्या हुआ, जो किंग था फाइनली उनको क्या कर दिया गया, एग्जीक्यूट कर दिया गया। नाउ यू कैन सी इन द पिक्चर, दिस इज द बेस्टाइल फोर्ट, पीपल आर गैदर्ड हियर एंड दे आर डिस्ट्रॉइंग इट। Now let us see how the French society used to be during the late 18th century, which is our next caption. French society during the late 18th century. Now we have seen that people were very angry, so they have, destroyed the Bastille fort, okay, and then a revolution took place, right? But how all of these things happened, let us quickly have a look at that. Okay, so Louis XVI in 1774 ascended the throne of France. Means in the year 1774 Louis XVI became the new king of France. Okay. Financially France was drained because of the war. Okay. Financially जो है फ्रांस की हालत थी वो wars के कारण खराब थी. Now which all wars? फ्रांस और ब्रिटेन के वॉर चला था पहले, ठीक है. देन America was fighting with Britain. Okay, you all know America used to be a colony of Britain earlier. तो फ्रांस ने अमेरिका की हेल्प करी थी ब्रिटेन से जीतने में. ओके, नाउ फ्रांस ने अमेरिका की हेल्प तो कर दी जीतने में, लेकिन उनकी खुद की हालत उस वॉर में उनकी हेल्प करने के कारण ख़राब हो गई. पहले उनका खुद का ब्रिटेन से वॉर चला तो हालत उनकी ख़राब हो गई, क्योंकि वॉर्स में क्या होता है, हैवी कैजुअलिटीज़ होती हैं और बहुत सारा पैसा खर्च हो जाता है, राइट. तो पहले ब्रिटेन से उनकी लड़ाई हुई तो बहुत सारा पैसा खर्च हो गया. देन उस हार का बदला लेने के लिए उन्होंने क्या किया, अमेरिका को फाइनेंशियल एड्स दिए और अमेरिका को पैसा दे करके ब्रिटेन और अमेरिका का जब वॉर हुआ तो अमेरिका को इंडिपेंडेंस मिल गया. इससे फ्रांस को कुछ हासिल नहीं हुआ, लेकिन उनको एक सेटिस्फेक्शन हो गया कि उन्होंने हमने ब्रिटेन को अब फाइनली क्या कर दिया, ह्यूमिलिएट कर दिया. लेकिन इससे फ्रांस की इंटरनली हालत कंप्लीटली ख़राब हो गई, क्योंकि अब उनका खजाना बिल्कुल खाली हो गया, राइट. सो फ्रांस अंडर लुई 16 हेल्प्ड द 13 अमेरिकन कॉलोनीज टू गेन देयर इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटेन. एज इट इज़ आई टोल्ड यू, अब हेल्प करने से क्या हो गया, फाइनेंशियल हालत बहुत ख़राब हो गई. अब क्या करेंगे जब फाइनेंशियली हालत बहुत ख़राब हो जाती है. किंग्स पहले कैसे अपना इनकम जनरेट करते थे, टैक्सेस इम्पोज करके, राइट. सो लुई 16 विल ऑल्सो डू द सेम. What he will do? He will increase the taxes. उससे उनके खर्चे निकलेंगे ना. कैसे उनके रेगुलर खर्चे कैसे निकलते हैं, टैक्सेस से. जब किंग्स लोगों पे टैक्सेस लगाते हैं तो उससे उनकी इनकम जनरेट होती है. इनकम जनरेट होती है तो वो अपने खर्चे उससे निकालते हैं. सो अब क्या होगा, टैक्सेस वर इंक्रीज्ड. टैक्सेस तो हमेशा से थे, अब टैक्सेस क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे. सो टैक्सेस वर इंक्रीज्ड टू मीट रेगुलर एक्सपेंसेस सच एज द कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग एन आर्मी. अच्छा, किंग्स को क्या होता है, आर्मी भी मेंटेन करनी पड़ती है तो उसकी भी बहुत हाई कॉस्ट होती है ना. तो मेंटेन करनी है आर्मी तो टैक्स बढ़ाना पड़ेगा. द कोर्ट को भी उनको क्या करना पड़ता है, कंट्रोल करना पड़ता है. सबको, उनके जो भी मिनिस्टर्स होते हैं या जितने भी उनके सर्वेंट्स होते हैं उन सबको क्या करना पड़ता है, सैलरी देनी पड़ती है, राइट. रनिंग गवर्नमेंट ऑफिसेज और यूनिवर्सिटीज़, गवर्नमेंट के कुछ ऑफिसेज भी चलते हैं, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ भी चलती हैं, तो उन सब के पास भी पैसा कहाँ से जाता है, किंग के पास से जाता है ना. जैसे अभी गवर्नमेंट स्कूल हमारे कंट्री में है तो वो कौन रन करता है, उनको गवर्नमेंट, राइट. और उस ज़माने में गवर्नमेंट सारी कौन थी, किंग ही होता था, तो किंग ही उनको रन करते थे. तो इन सब चीज़ों को अच्छे से मेंटेन करने के लिए क्या किया गया,
टैक्सेस वर इंक्रीज्ड, टैक्सेस को क्या किया गया, इंक्रीज किया गया। अब इससे क्या हुआ, द कंट्री ऑफ फ्रांस वॉज डिवाइडेड इन 3 स्टेट्स इन द 18th सेंचुरी। अच्छा, टैक्सेस इंक्रीज करने से क्या होगा, जिन लोगों पर टैक्स लगे उनको गुस्सा आएगा। तो पहले हम देखते हैं कि सोसाइटी का डिवीजन किस तरीके से था, किन लोगों को टैक्स देना पड़ता था और किन लोगों को टैक्स नहीं देना पड़ता था। सो लेट अस सी, द कंट्री ऑफ फ्रांस एज आई टोल्ड यू वॉज डिवाइडेड इन 3 स्टेट्स। ओके, अब ये 3 स्टेट्स कौन कौन से हैं। पहला स्टेट तो क्या था, क्लर्जी। क्लर्जी कौन होते थे, जैसे फादर होते थे चर्च में, यू ऑल नो ना, चर्च में क्या होते हैं, फादर होते हैं ना, चर्च में बिशप्स होते हैं, राइट। तो ये जो फादर बिशप्स ये थे, ये किसके अंदर इंक्लूड होते थे, फर्स्ट स्टेट में जो होते थे क्लर्जी। इनके ऊपर कोई टैक्सेस नहीं थे, रादर ये टैक्स लगाते थे लोगों पे। फिर सेकेंड स्टेट के अंदर कौन थे, नोबिलिटी। नोबिलिटी कौन होते थे, फ्यूडल लॉर्ड्स। फ्यूडल लॉर्ड्स कौन होते हैं, जिनके पास क्या होती है, ज़मीनें होती हैं, है ना। तो इनके पास बहुत सारी ज़मीनें थी, ये वहाँ लोगों से काम करवाते थे और बदले में उनको बहुत कम पैसे देते थे। साथ ही साथ ये भी लोगों पे बहुत सारा दुनिया भर का टैक्स लगा देते थे जो इनका मन होता था। फिर आते हैं थर्ड स्टेट। थर्ड स्टेट में कौन आते थे, जो बिजनेसमैन होते थे, वो मर्चेंट्स होते थे, कोर्ट के ऑफिशियल्स होते थे, लॉयर्स होते थे, पीजेंट्स यानी कि किसान, आर्टिसंस जो कुछ ऐसे चीज़ें बनाते हैं, वो शिल्पकार, स्मॉल पीजेंट्स जो छोटे छोटे वर्ग के किसान होते थे, वो जिनको कम लेबर मिलता था, लैंडलेस लेबर जिनके पास लैंड बिल्कुल नहीं है। लैंड किसके पास है, फ्यूडल लॉर्ड्स के पास, और इनके पास लैंड नहीं है। तो ये क्या करते हैं, उनके फार्म्स में जाके क्या करते हैं, फार्मिंग करते हैं और इनको बिल्कुल कम वेजेस मिलता है। ओके, एंड देन कौन आते थे, सर्वेंट्स। तो ये सारे जो होते थे ये थर्ड स्टेट के अंदर इंक्लूड होते थे, और सारा टैक्स किनको देना पड़ता था, इनको ही देना पड़ता था। सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन भी किसकी थी, इन्हीं लोगों की थी, राइट। अब सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन इनकी है, सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन इनकी है और सबसे ज़्यादा टैक्स भी इनके ऊपर है, राइट। इन लोगों को कोई टैक्स नहीं देना, इनको कोई टैक्स नहीं देना, इनफैक्ट ये टैक्स भी लगा रहे हैं। तो क्या होगा, इससे हालत खराब होगी। नाउ सी व्हाट हैपेंड, 90% of the population was dominated by peasants, but only a small number of them owned the land they cultivated. अब सबसे ज़्यादा population किसकी है, थर्ड स्टेट की। थर्ड स्टेट में कौन आ रहे हैं, peasants भी आ रहे हैं, राइट। अब उनके पास सबसे कम लैंड है, राइट। तो अब वो क्या करेंगे, दूसरों के लैंड में जाके काम करेंगे, उनको बहुत नॉमिनल वेजेस मिलेगी और उस वेजेस पे भी क्या है, टैक्स देना पड़ रहा है, राइट। तो इससे क्या होगा, उनको, लोगों को गुस्सा तो आएगा ही, राइट। अब क्या हो रहा है, 60% वॉज ओन्ड बाय द नोबल्स। 60% जो लैंड है वो किसके हाथ में है, नोबल्स के पास में है, चर्च के पास में है, और जो बाकी रिच लोग हैं थर्ड स्टेट के अंदर, सोसाइटी के अंदर, उनके पास 60% लैंड है। तो ये दिस इज अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन इन दी सोसाइटी, राइट, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ इन दी सोसाइटी। तो इससे क्या होगा, लोगों में गुस्सा तो डेफिनेटली बढ़ेगा, क्योंकि कुछ लोगों के पास तो खाने को ही नहीं है और कुछ लोगों के पास बहुत ज़्यादा पैसा है। The clergy and the nobility, members of the first two states, enjoyed certain privileges by birth. Clergy class जो थी फर्स्ट स्टेट और जो nobles थे सेकेंड क्लास, उनको कुछ privileges मिले हुए थे by birth. Now which are those privileges? These group of members were exempted from paying taxes and enjoyed feudal privileges. अब ये जो दो states थे, clergy और feudal lords, या फिर जिनको हम nobles बोल रहे हैं, nobility class, these guys they need not pay any tax. Okay, इनको कोई taxes नहीं देने थे, rather they enjoyed feudal privileges. एक तो उनको फ्री में लैंड मिल गई, राइट, फिर वो क्या कर रहे हैं, लोगों पे टैक्सेस भी लगा रहे हैं, राइट। तो ये कुछ प्रिविलेजेस थे जो उनको मिले हुए थे बाय बर्थ। ऑल मेंबर्स ऑफ द थर्ड स्टेट्स हैड टू पे टैक्सेस टू द स्टेट। ओके, जितने भी थर्ड स्टेट के लोग थे, जो आर्टिसंस थे, जो पीजेंट्स थे, जो लेबरर्स थे, सर्वेंट्स थे, उनको क्या करना है, थर्ड स्टेट को, दे हैड टू पे टैक्सेस टू द स्टेट। ओके, as it is told you about the state, when I say state it means the government we are talking about. अब उस टाइम पे गवर्नमेंट कौन है, कोई नहीं है, कोई गवर्नमेंट है ही नहीं, कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, किंग ने जो बोल दिया वही सही है ना। अब इन पे क्या कर रहे हैं, टैक्स लगा रहे हैं। अब कौन सा टैक्स है, फर्स्ट ऑफ ऑल इट इंक्लूडेड अ डायरेक्ट टैक्स कॉल्ड टेल। नाउ आई एम वेरी बैड एट French, so those who are who know French, they can excuse me here, okay. So, and a number of indirect taxes which were levied on articles of everyday consumption like salt and tobacco. अब ये क्या कर रहे हैं,
एक तो डायरेक्ट टैक्स हो रहा है, उसके अलावा जिसकी जो मर्जी थी वो टैक्स उन पे लगा रहा था। चर्च अलग टैक्स लगा रहा था, फ्यूडल लॉर्ड्स अलग टैक्स लगा रहे थे, है ना, किंग तो एज इट इज टैक्स ले ही रहा था। इनफैक्ट एवरीडे कंजम्पशन की जो चीज़ें थी, सॉल्ट और टबैको, उन पे भी टैक्सेस लगाए जा रहे थे। तो इससे क्या हो रहा था, दिन पर दिन लोगों की हालत खराब होती जा रही थी। नाउ यू कैन सी इन दिस फिगर, this picture, the nobleman in the picture, the nobleman is the spider, the peasant is the fly. Okay, now this is some nobleman, he is the noble. Okay, he is sitting here like the, you know, lord or the king. Now he is, who is he is a poor man. Now this poor fellow brings everything like grains, fruits, money, salad, etc. But this fat lord sits there ready to accept it all. वो फिर भी उस जो गरीब आदमी है वो सारी चीज़ें ला रहा है. Still he is taking everything from him, and you know he still does not have compassion. He accept everything and he doesn't even care to grace him with a look. वो उसको एक एक अच्छे look भी नहीं दे रहा है, right? So this shows how the society was. The more the devil has, the more he wants. उसके पास already बहुत कुछ है, right? But फिर भी उसको और ज़्यादा इन गरीब लोगों से चाहिए. So the condition of the society was very very bad, और दिन पर दिन taxes increase होने के कारण लोगों की हालत और ज़्यादा ख़राब हो गई. तो इससे लोगों में क्या हुआ, गुस्सा बहुत ज़्यादा हो गया.